Good morning, everyone. Hope you all are safe and enjoying good health. Today I am going to start Indian economic development. The first chapter is Indian economy on the eve of independence. This book is to familiarize you all with the basic features of the Indian economy, that is, what is the actual situation of the Indian economy, what was its situation before independence, and according to that situation, what changes, what strategies we have adopted in the post-independence period. So, I'm going to start the chapter. First of all, we all know that the pre-independence period, which rule was going on? British colonial rule, right? British colonial rule tempered the Indian economy very badly. ब्रिटिशर्स ने हमारे नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल एक्सप्लॉयट कर दिए थे. आफ्टर 200 years of British rule, that is 200 years of colonialism, India gained independence on 15th August 1957. In this chapter, we are going to study the state of the Indian economy prior to independence as well as after independence. कि अब हमारी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, कि पहले में और अब में क्या चेंजेस आए हैं. पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड थी, स्टैग्नेंट थी. स्टैग्नेशन मीन्स स्लो ग्रोथ, low level of economic development under the colonial rule. First of all, what do you mean by colonialism? Colonialism refers to a system of political and social relations between two countries, of which one is the ruler and other is its colony. The ruling country not only has political control but also वो जो ruling country होती है वो अपनी ही क्या बनाती है, policies बनाती है, dominate करती है वो. In case of India, unequal relationship between colony कौन थी, India, and the ruling country Britain resulted in underdevelopment as well as stagnation of the Indian economy. Before the advent of the British rule के पहले इंडियन इकोनॉमी एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, सेल्फ रिलायंट थी. इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. एग्रेरियन बेसिक मेन सोर्स हमारा जो लाइवलीहुड का था, agriculture was the main source of livelihood and it engaged about 2/3 of the total population. And one more thing, before independence, India was well known for its handicraft industries. That is, पूरे वर्ल्ड में हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बहुत फेमस था. जो हमारे राजास थे, महाराजास थे पहले, वो पूरे वर्ल्ड में हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को फेमस करते थे. दैट इज़, इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. India was also known for its handicraft industry in the field of cotton and silk, textiles, metal, precious stoneworks. handicraft product में India worldwide reputed country था of using fine quality of material as well as हमारे जो craftsmen थे, they were excellent. But during the British rule, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट दैट इज किसने बनाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई,
वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ थी कि इंडिया को क्या करना, डाउन दिखाने की। उन्होंने हमारा हैंडीक्राफ्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक वे से उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को स्पॉइल किया था। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारा दैट इज़ योर सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा टर्शरी सेक्टर, एक्चुअल में हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था, हम इस चैप्टर में इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। हमारे जो किसी भी नेशन की, अगर हम देखें किसी भी नेशन की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड विद द डेटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट no sincere attempt was made by the British government to estimate India's national and per capita income. कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं लगाए गए थे क्या पता लगाने के लिए कि इंडिया की नेशनल और पर कैपिटा इनकम क्या है। एनसीईआरटी का एक बैक क्वेश्चन है, कौन थे वो जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम का एस्टीमेट लगाया था? सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय द एक्सपर्ट्स लाइक दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शरास, VKRV राव, RC देसाई। ऑल दीज उन्होंने क्या मतलब इन सब ने क्या लगाया था? एक अटेम्प्ट किया था पर कैपिटा इनकम पता लगाने का, बट ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, बट दे ट्राइड टू कैलकुलेट। तो क्योंकि तभी पता चलता है कि एक्चुअल में इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट with the primary sector, with the condition of the agricultural sector. During the pre-British period, the condition of Indian agriculture was not at all satisfactory. इंडिया की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। India's economy under the British colonial rule was overwhelmingly rural and agricultural in character. क्या है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर स्ट्रांगली हम लोग किस पर डिपेंड थे? मतलब बेसिकली इंडियन इकोनॉमी क्या थी? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड, और वो अपनी लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से अफोर्ड करते थे, अर्न करते थे? दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली। Even with this large proportion, 85% ऑफ पॉपुलेशन हमारी किस में इंगेज्ड थी? एग्रीकल्चर में। येट हमारी कंट्री फूड में बिल्कुल भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। Now, what are the main reasons of the stagnation? What are the main reasons of the slow growth or backwardness of the agricultural sector? Number one is, first point is land settlement system. Now, what is this land settlement system? The most important reason is, under this system, profits accruing out of the agricultural sector went to the zamindars. क्या था बेटा? जमींदार कौन थे? एक्चुअल में जो मोस्ट ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन वर ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन। जमींदार कौन थे? इंग्लिशमैन थे। जो हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन था उसके ओनर कौन थे? जमींदार। और हमारे इंडियन फार्मर्स वहाँ पर क्या करते थे? एज अ टेनेंट काम करते थे। अंडर दिस सिस्टम जो भी प्रॉफिट्स होते थे
टेनेंट्स को वो प्रॉफिट्स लगान एक तरह का रेंट की फॉर्म में किसको देने पड़ते थे? दैट इज योर जमींदार्स को. द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली, जमींदार सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते थे? दैट इज उन्हें अपने सिर्फ लगान से मतलब था रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर. उन्हें कोई मतलब नहीं था कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, मतलब बेचारे टेनेंट्स के पास कुछ बच भी रहा है या नहीं. द डेट फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड. अब क्या है हमारे पास? जमींदारों को किसको पे करना होता था? टैक्स, लैंड टैक्स की फॉर्म में उन्हें गवर्नमेंट को पे करना होता था. फेलिंग टू विच जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स. अगर वो टैक्स नहीं टाइम पर पे करेंगे तो जमींदार से वो लैंड ले ली जाती थी. ब्रिटिशर्स बहुत क्रूअल थे, बहुत टॉर्चर कर रहे थे. जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. इसीलिए बेसिकली हमारे जो फार्मर्स हैं वो इकोनॉमिकली और फिजिकली क्या होते गए? वीक होते गए. जमींदार्स का मेन मकसद क्या होता था? दे वर इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उनको सिर्फ क्या था? एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था. कैसा? जमींदारों को किसको पे करना होता था? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता था. तो जमींदार किनसे चार्ज करते थे? दैट इज योर टेनेंट से. बेसिकली फंसते कौन थे? हमारे टेनेंट्स फंसते थे. तो कहते हैं कि इससे क्या हो रहा था कि हमारे फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे थे. सेकेंड पॉइंट इज commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture means production of crops for sale in the market. हमारे पास बच्चे दो तरह का एग्रीकल्चर होता है. एक तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है और एक कमर्शियल फार्मिंग होती है. सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि फार्मर जब अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी फैमिली के लिए फूड क्रॉप्स लगाता है. और कमर्शियल एग्रीकल्चर का मीनिंग है कि जब एक फार्मर क्या लगाता है? फॉर सेल इन द मार्केट. Commercialization of agriculture means production of crops for sale in the market rather than for self-consumption. During the British rule, farmers were given higher price. Farmers को क्या कहा गया था? कि कैश क्रॉप्स लगाओ, जैसे कि कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, क्योंकि इन गुड्स की एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में इनकी क्या थी? ज़रूरत थी. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल farmers were given higher price for producing cash crops like jute or cotton, but however this did not improve the economic condition of the farmers, because instead of producing food crops they were producing cash crops. क्योंकि वो crops कहाँ पर यूज़ होनी थी? to be used by the British industries. तो ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप्स. एक्चुअल में क्या था कि फूड क्रॉप्स लगाने से एटलीस्ट उनकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड ग्रेन फुलफिल तो हो रही थी. क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन था. गुड रेनफॉल, गुड आउटपुट, बैड रेनफॉल, बैड आउटपुट. तो क्या था? फूड क्रॉप से उनके पास एक सिक्योरिटी थी, बट कैश क्रॉप से उनकी वो सिक्योरिटी भी उनसे चली गई. तो क्या हुआ? दैट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कमर्शियलाइज्ड. वाई? टू केटर द नीड ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फॉर नेसेसरी रॉ मटीरियल. थर्ड पॉइंट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थी.
इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं हो रहे थे, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल भी, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity. The cultivator had neither the means nor any incentive, that is benefit, to invest in agriculture. Zamindar had no roots in the villages, while the British rule spent little on agricultural, technical or mass education. तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल था मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, इसीलिए हमारा आउटपुट था, जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी. स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. India's agriculture was facing scarcity. That is, कुछ फार्मर्स ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया, फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स पर गए, बट नीदर दे हैड रिसोर्सेज नॉर टेक्नोलॉजी नॉर एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट कि वो एग्रीकल्चर में क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें. तो India's agriculture was facing scarcity of terracing, flood control, drainage, मतलब वहाँ कोई ट्यूबवेल्स वगैरह इन सब चीज़ों की फैसिलिटी नहीं थी, और ना ही इतना बच पाता था कि वो फर्दर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करके, मतलब एक इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ कर सके टेक्नोलॉजिकली. सो दैट्स वाई हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लेवल क्या था, बहुत कम था. सो दीज वर द रीजन्स फॉर द बैकवर्डनेस, or you can say the stagnation of Indian agriculture. Next is the industrial sector. Now what is industrial sector? Industrial sector is the secondary sector. Although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation. अभी मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में हमारे क्राफ्ट्समैन इतने एक्सेलेंट थे, इतने कैपेबल थे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पूरे वर्ल्ड में क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस. Like agriculture, India could not develop a sound industrial base. कब? During the British rule. कहते हैं, मतलब अब हम फॉलोइंग पॉइंट्स रीड करेंगे, दैट इज विच लेड टू द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. फर्स्ट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दैट इज योर डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. बहुत सिस्टमैटिकली उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन का काम, बिल्कुल उनकी इंडस्ट्रीज बंद करा दी थी, हमारे हैंडीक्राफ्ट को बहुत स्पॉइल कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत प्लानिंग से. ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस तो हमारी कंट्री का कुछ था ही नहीं. प्राइमरी मोटिव क्या था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का? टू गेट द रॉ मटेरियल. इंडिया क्या कर रहा था? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था. जो इंडिया एक हब है रॉ मटेरियल का, यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, और वहाँ से क्या आ रहे थे? ब्रिटिश प्रोडक्ट्स बन कर आ रहे थे. क्या आ रहे थे हमारे पास? ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एट हायर प्राइजेस. तो कहते हैं उनका मेन एडवांटेज क्या था कि वो अपनी होम कंट्री को क्या करवा सके? बेनिफिट. सी क्या थी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. यहाँ से जितना रॉ मटेरियल जाएगा नो टैक्स, वहाँ से जितने फिनिश्ड गुड्स आएंगे नो टैक्स. लेकिन यहाँ से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट होंगे उन पर क्या लगा रखी थी? बहुत ज़्यादा हेवी
ड्यूटी लगा रखी थी, बहुत ज़्यादा क्या लगा रखे थे, टैक्सेस लगा रखे थे। तो क्या है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी उन्होंने ख़राब करी एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट भी, क्योंकि क्या लगा रखे थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे थे, जिससे हमारा प्रोडक्ट बाहर की कंट्री में जाके महंगा बिके। एज यूजुअल महंगा तो कोई लेना प्रेफर ही नहीं करता, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली हमारी कंट्री को क्या करना चाहा, स्पॉइल, डिस्ट्रॉय करना चाहा। सेकेंड, एडवर्स इफेक्ट, हमारे हैंडीक्राफ्ट की वजह से किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल, दैट इज मेन ओवर क्राउड, बर्डन ऑफ पॉपुलेशन सारा किस पर आ गया, एग्रीकल्चर पर आ गया। जो आर्टिशियंस अनएम्प्लॉयड हुए थे, दे वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर एज देयर सोर्स ऑफ livelihood. Import of finished goods. So what is this? The Indian made goods could not withstand the foreign competition, क्योंकि जो ब्रिटेन से बन के आ रहे थे वो क्या था, मशीन मेड चीप गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट इज कॉस्टली, नो। तो क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन न्यू डिमांड। इंडिया में किसकी डिमांड बढ़ गई, दैट इज योर चीप मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स की। तो क्या हुआ, रादर दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जो इम्पोर्ट होके आ रहे थे वही सस्ते थे, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं है, उस टाइम पर नहीं थी। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मशीन्स वगैरह, टूल्स वगैरह। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। British rulers did not pay any attention because they want Indians to be dependent on Britain for the heavy and capital good industries. Low contribution to GDP, जब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद करवा दी गई तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कम हो गई थी, तो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया था, कम। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ टू जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम था। उनका रोल सिर्फ कहाँ तक था, रेलवेज उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए जनरेट करी, इलेक्ट्रिसिटी उनके बेनिफिट के लिए ताकि जो इंडस्ट्रीज वगैरह रन हो सके, कम्युनिकेशन फॉर मूवमेंट ऑफ that is your information. The limited area of operation of the public sector was also a significant reason for the drawback of the industrial sector. Public sector remained confined only to railways, power generation, communication. तो इसीलिए it can be concluded कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा क्या था, बैकवर्ड था. So today we studied the condition of Indian agriculture and industrial sector, right? Go through the topic. Feel free to take your doubts and queries. Thank you. God bless you all.